آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، کافی جگہ آگے موجود ہے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو اور وہ وہیں پہ تشریف رکھ سکیں۔ عزاداری کونسل کے اراکین کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مومن کو مجلس کے دوران آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اگر آپ کسی کو اپنے دائیں بائیں ریکارڈنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں منع فرمائیں یا ہمیں اطلاع دیں، ٹھیک ہے؟ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم نے علامہ زیغم عباس مجتبائی صاحب کو خمسہ مجالس کے لیے دعوت خطاب دیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلے سال 5 مجالس میں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس سال بھی آپ ان کے ساتھ سفر کریں گے اور بہترین انداز میں ان کے خطاب کو سنیں گے۔ قبلہ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ قبلہ کے استقبال کے لیے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان امام حسین، اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد علامہ زیغم عباس مجتبائی صاحب آف گجرانوالہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد اختتام مجلس پر ذاکر سید علی رضا آف گجرات۔ تمام مومنین مل کر درود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم وحسن صورکم وإلیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفیت آپ نے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا گھر سے چل کے یہاں تک آنا، آپ کی ایک ایک قدم ایک ایک سانس جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ جیسا کہ ناظم منبر صاحب نے اعلان میں بہترین انداز میں آپ کو آگاہ فرمایا ہے، خصوصی دعا ہے پروردگار اس وقت کشمیر میں بھی پاکستان میں بھی حالات انتہائی سنگین اور کشیدہ ہیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ جو شر پسند عناصر شیعہ اور سنی میں نفرت اور تفرقے کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر وہ ہدایت والی لکیر کراس کر چکے ہیں تو خدا انہیں نست و نابود فرمائے۔ پروردگار شیعہ اور سنی میں اتحاد محبت یگانگت نصیب فرمائے۔ پاکستان میں امن و امان کی بحالی میں پروردگار وسعت عطا فرمائے۔ آپ سے خصوصی دعا ہے کہ گزارش ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی اور بحالی میں وسعت کے لیے پاک سیدہ زہرا کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इजाज़त जनाब बादशाह। इंशाअल्लाह आपके कदमों से उठने वाली धूल के सदक़े में अगर ज़िंदगी रही तो 5 दिन आपकी नौकरी होगी, और इन 5 मजालस का जो मौजू होगा आपकी खिदमत में वो फस्अलू अहल ज़िक्र के उन्वान से होगा। ये सूरह नहल है। आज आप एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए तमहीद सुन लें, फिर कल से तमहीद में वक्त ज़ाया नहीं होगा। सूरह नहल 16वां सूरा है, और जो आया मजीदा आज और इंशाअल्लाह अगले 4 दिन आपकी खिदमत में हदिया की जाती रहेगी, इसका निशान 43 है। मैं आयत पढ़ता हूँ, अरबी पढ़ता हूँ, सवाब की खातिर जनाब तक कुरान पहुँचाता हूँ। कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान सुनना भी सवाब, और कुरान की तायद में बोलना भी सवाब। इसके बाद फिर मैं जनाब की इजाज़त लेके फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम जाहिल हो तो 14 से इल्म हासिल क्यों नहीं करते? खुदा आपको सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। चूँकि 5 मजलिसें खमसे को 5 ही कहते हैं, 5 यहाँ थी। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द मीरपुर में मैंने और भी मजलिसें पढ़ी हैं, तो मेरा दिल गवाही देता है कि आप मेहमान नवाज लोग हैं। जैसे आप बुलंदी पे रहते हैं वैसे आपकी मार्फत का मेयार भी जो है बुलंद है, और मेहमान नवाज लोग हैं। आप बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह बाबा जी कह रहे थे, शाह जी कह रहे थे, अकमल शाह जी कह रहे थे कि सारा मीरपुर इस इंतज़ार में है कि जल्दी खमसा आए और इस नौकर को फिर सुने। मैं जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, चूँकि मैं आपका नौकर हूँ, मेरी इज़्ज़त औकात असल यही है कि मैं आपका नौकर हूँ। मैं खुशामद नहीं कर रहा, चूँकि मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने अल गदीर की 3री जिल्द पढ़ी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन के कदमों से जो धूल निकलती है ना, अगर वो गुनाहगार पर पड़ जाए तो उस पर जहन्नुम हराम होगा। इसलिए मैं खुशामद से नहीं कह रहा, मैं सचमुच कह रहा हूँ। मेरा अकीदा ये है, मेरी जी बिस्मिल्लाह, जो मेरी असल औकात है वो यही है कि मैं आपका खादिम हूँ, और अल्लाह मुझे इसी मोहर पे मौत अता करे। तो मौला आपको सलामत रखे। मैं आज यानी ये जो मैंने अपनी बात की है, मैं कौन होता हूँ कि मेरी बात हो, ये 14 का जिक्र है। सिर्फ गुजारिश करने का मतलब ये था, आज ही इसी दिन आपका नौकर ऐसी बुलंद गुफ्तगू करना चाहता है कि आपको पिछला खमसा सारा मिला के छोटा लगेगा और आज की तनहा गुफ्तगू बुलंद नजर आएगी। ये था मेरे अर्ज करने का मतलब। बाबा जी, अल्लाह बाबा जी आपका साया सलामत रखे। अब मेरे सारे मोमिन भाई माशाल्लाह काफ़ी आ गए हैं, और बाद में जो आते हैं फिर उनको थोड़ी तकलीफ होती है। मिंबर से अभी भी फासला है कि आप मौला हुसैन के नाम के सदक़े में बैठे बैठे 1-1, 2-2 कदम सारे भाई तकलीफ करके आगे आ जाएंगे। जी मौला आपको सलामत रखे। भाई इतना काफ़ी है जी। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। जी जी बिस्मिल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया। लो जी सरकार, अब एक मरतबा सारे मिल के जितने मेरे सरदार बैठे हैं, क्योंकि जिसके दिल में अली है वो मेरा सरदार है, मुझे ये बताइए कि क्या इजाज़त है नौकर बात शुरू करें? मौला आपको सलामत रखे। हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए हम जो खमसे का आगाज़ करेंगे, इसमें 2-3 चीज़ें होंगी, और इसी के राउंड बोट इंशाअल्लाह हम 5 दिन आपकी खिदमत में नौकरी अदिया करेंगे। आज की हद तक, क्योंकि मेरा मौजू है फस्अलू, सवाल करो, जिसका तुम्हें इल्म नहीं वो सवाल करो। ये है हमारा मौजू, फस्अलू हमारा मौजू है, जिसका मतलब है पूछो। तो इसी उन्वान से हम इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की हद तक क्या सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है मजहब जाफरी को अंडरलाइन लगाने के लिए? उन एतराज़ात में से, उन साजिशों में से इस वक्त पहली साजिश ये है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, शिया इसलिए काफिर हैं, इसलिए वाजिबुल कत्ल हैं, इसलिए बाइस नफ़रत है कि ये जो शिया हैं ये मौला अली को नबी पाक से ज़्यादा अफजल मानते हैं। मुस्तफ़ा पाक को तो ये बराए नाम सा मानते हैं। बैठते हैं, तवज्जो रखिएगा, तो अली अली करते हैं, उठते हैं तो
हुसैन हुसैन करते हैं, इन्हें पता ही नहीं नबी की शान क्या है। अब आप ही बताइए ना, जिन्हें नबी पाक की मार्फत ना हो, शान ना पता हो, और नौज बिल्ला मौला अली को बढ़ाते हो, वो काफिर नहीं तो और क्या है। वो बच्चे कहते हैं हाँ यार बिल्कुल बात तो सही है, बात तो वाकई सही है, इसका मतलब है शिया वाकई बायस नफरत है। वाकई वो बात सही थी कि ये अपने बच्चों को ज़िबा करके चावलों में डालते हैं, ये बड़ी अजीब सी वैशी सी कौम है, इसका मतलब है इन्हें तो पता ही नहीं है। वाकई यार बात तो सही है, ये कैसे मुसलमान है भाईजान, ये कैसे मुसलमान है। ये मतलब है कि मुस्तफ़ा पाक को थोड़ा मानते हैं और मौला अली को ज्यादा मानते हैं। मैं पहला जुमला कहूंगा, कल तक इसका नशा उतर जाए मुझे फोन कर दीजिएगा, आइंदा कश्मीर क्या पाकिस्तान के मेंबर पे आना छोड़ दूंगा। मौलवी साहब पहली बात यह है, हम अली को मानते ही इसलिए हैं कि मुस्तफ़ा ने कहा था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और याद रख हजरत साहब, याद रखिए, हम अली से इतना ज्यादा मुस्तफ़ा को मानते हैं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे भाईजान, शुक्रिया, तेरी मौला जवानी सलामत है। बिस्मिल्लाह कर। बादशाह आपको सलामत रखे, मौला आपकी मार्फत को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह आपकी मोहब्बतों में इजाफा फरमाए। क्या कमाल का मजमा है, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोग हैं। मौला आपको सलामत रखे। जी सदके सरकार, अब चूंकि आपने तवज्जो फरमाई है और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बात की गहराई तक, हालांकि रहते आप बुलंदी पे हैं लेकिन आप गहराई को खूब समझते हैं। चूंकि जो बुलंदी पे रहता है ना वो गहराई को खूब समझता है। हत्ता कि मैंने आपके इलाके की शान में एक जुमला कहूँ, आपके इलाके की शान में जनाब अबू तालिब का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो ना कि दुनिया की असल हकीकत देखो कि ये कितनी पस्त है, तो बुलंदी पे खड़े होकर देखो। ठीक है, तो अल्लाह ने आपको वैसे ही बुलंदी पर रखा हुआ है, इसका मतलब है ये तो नेमत आपको गॉड गिफ्टेड मिल गई ना जी। अच्छा अब जुमला कहूँ, इसका मतलब ये है अगर नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक अली भी छोड़ जाते तो हम अली को भी छोड़ जाते। अब बोलना आपने मेरे साथ, इसका मतलब है आपको इस बात का पता है कि कुछ लोग जल के हमें राफजी कहते हैं। तो आपको पता है राफजी का मतलब क्या होता है, लफ्जी माना क्या है? राफजी का लफ्जी माना है कि इन्होंने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, उनको मानते नहीं है, इसे कहते हैं रिफ्स, इसे कहते हैं राफजी। कि ये शिया है ना, ये इन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा है। मौलवी साहब अल्लाह की कसम, हमने फकत उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह बाबा जी, बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया। एक मरतबा हर भाई मिलकर बोले जी उच्चा नारा हैदरी जियो। मेरे भाइयों कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम बड़े प्यार से बात करने वाले लोग हैं। और याद रखिए, मैं बार बार शिया सुन्नी भाई कहूंगा, हालांकि ये मेरा जुमला सही नहीं है, क्योंकि हमारे उलमा फरमाते हैं सुन्नी हमारे भाई नहीं बल्कि हमारी जान है। खुदा की कसम इसमें कोई शक नहीं है। मौला आपको सलामत रखे। हमें लोग बेशक काफिर कहें, लेकिन हमारा अकीदा ये है जो भी बतूल के बाबा का कलमा पढ़ता है वो काफिर है। ये शियों का अकीदा है। वो शिया है ही नहीं जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, क्योंकि और पूरे के पूरे इस्लामी बरादरी मिल के भी हमें काफिर कहे ना, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। 5 बंदे समझ के बोलो मैं राजी हूं। पता क्यों नाराज इसलिए नहीं होना चाहिए भाई जी क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है काफिर वो होता है जिसका इमाम काफिर हो। जो मेरे करीब भाई बैठे हैं, जो भाई मेरे करीब बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, इसलिए मोहब्बत की फिजा होनी चाहिए, प्यार हैदरी, मोहब्बत की फिजा कायम करनी हमने हमसे में। मौला आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। तो अभी तक मैंने लफ्ज़ क्या कहा, तमहीद में आपसे सिर्फ दोस्ती को बहाल करने के लिए पिछले साल से, चूंकि मैं तरसा हूँ, मेरी आंखें तरसी हैं आपकी ज़ियारत के लिए, तो आपकी जो पिछले साल की दोस्ती है उससे अच्छा अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें भाई। तो मैं चूंकि आपकी ज़ियारत के लिए तरसा हुआ था, तो वो पिछले साल का जो है ना कनेक्ट पेश कर रहा हूँ वली वलीउल्लाह के सदक़े में, ताकि तेरा दोस्ती में मजीद पुख्तगी आ जाए। तो मैं ये कह रहा था, अभी मैंने शुरू नहीं की, मैं ये कह रहा था कि खुदा न खास्ता हमने तो मौला अली को माना ही इसलिए है कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर मैंने ये कहा कि खुदा न खास्ता अगर अली भी छोड़ जाते तो हम अली को भी छोड़ जाते। फिर मैंने ये कहा कि हमने सिर्फ उन्हें छोड़ा है जिन्होंने नबी को छोड़ा है। और अब चौथा लफ्ज़ कहने लगा हूँ, ज़रा मेरा साथ दीजिएगा। हज़रत साहब हम तो ये भी नहीं देखते
کشمیری کون ہے، پاکستانی کون ہے، انڈین کون ہے، افغانی کون ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے مرد کون ہے، عورت کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے. ایک لفظ 2 مرتبہ دہراؤں گا، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. اور ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے گورا کون ہے، کالا کون ہے، اور گورا کون ہے، کالا کون ہے. ہم فقط وہ دیکھتے ہیں جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جیو سب کے حیدری. بسم اللہ کر. بادشاہ کو سلامت رکھے. بھائی آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میں خدا کی قسم میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا. مجھے یہاں پہ 2 منٹ کھڑے رکھا ہے بابا اکمل شاہ جی نے، اور انہوں نے آپ کے جذبات مجھے بتایا. تو اللہ کی قسم میں یوں سمجھے کہ میں بڑے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے فضائل پڑھ رہا ہوں، ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اونچی آواز میں رہوں کہ جو وہ آپ کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے کہ کس حد تک آپ ایک 2 ٹکے کے نوکر کو ذکر شبیر کے صدقے میں پیار کرتے ہیں. اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. لو جی سرکار، اب مجھے یہ بتائیے، تمہید بھی مکمل ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ مومنین بھی کافی آ گئے، مولا کے مہمان آ بھی رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے موضوع جناب کے سامنے رکھا ہے، اب بالترتیب آرام سے اسے شروع کیا جائے. لو جی پہلا جملہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. 14 سے پوچھو. 14 معصومین کے پہلے مصطفیٰ ہیں. میں پہلا جملہ کہوں گا ادب کا، انتہائی ادب کا جملہ. اس کے بعد پھر ایک حاضر سروس عالم دین کا جملہ آپ کو سناتا ہوں. کون ہے میرا مصطفیٰ؟ جتنا میں آرام سے بول رہا ہوں نا، اتنا ہی آرام سے آپ بولیں گے، آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آئے گی. 2 ٹکے کا نوکر راضی ہو جائے گا. کون ہے مصطفیٰ؟ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمے پہ مجبور ہو. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں جملہ پھر دہراتا ہوں. جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر صدقے جاواں سبوحن قدوسن کی تسبیح پہ مجبور ہو جائے، ایسی کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک ایسے عالم دین کا نام لوں محبت اور بھائی چارگی کی فضا کو مزید وسعت اور قائم کرنے کے لیے. ایسے عالم دین کا نام لوں جو شیعہ نہیں ہے لیکن ہر شیعہ انہیں پسند کرتا ہے، سنی پسند کرتا ہے، اہل حدیث پسند کرتا ہے. میں کہتا ہوں 72 کے 72 فرقے مل کے انہیں پسند، حالانکہ مختلف مسالک ہیں لیکن انہیں پیار کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے، چونکہ آپ کا کشمیر ہے، ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اٹھ کے ان کا ہاتھ بھی چومتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں. میں نام لیتا ہوں، ان کا نام ہے حضرت مولانا طارق جمیل مدد اللہ العالی. وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. میں 2 ٹکے کا شیعہ ذاکر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولیں، بسم اللہ بابا جی، وہ مصطفیٰ ہے. لیکن طارق جمیل صاحب ممبر پہ تھے، کسی نے پوچھا قبلہ آپ بتائیے نا، خدا کی قسم پوری رات کا نشہ ہے، قبلہ آپ بتائیے نا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ ممبر پہ مسکرائے اور شاہ جی مسکرا کے کہتے ہیں جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ ہے. بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. جی سبھی شاہ جی بادشاہ، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. جی سید دادا، جی علی شاہ جی، مل کے سارے حیدری. سرکار بہت شکریہ، سرکار بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرا. جو وحشی بابا جی، جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسے مولب آج آپ کو پتہ چونکہ پہلا دن ہے تو ہمارے انتظامیہ والے بھائی کہیں پہ بلب لگائیں گے، کہیں پہ ڈبہ سیٹ کریں گے، کہیں پہ کنار سیٹ ہوگی. تو آپ نے اپنے نوکر کی طرف دیکھنا ہے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے نا، قیمتی ٹائم، یہ بچ جائے، ضائع نہ ہو. اچھا، تو جو ایسا معلم حقیقی، ایسا معلم انسانی جو وحشی کو رضی اللہ بنا دے، جو درندے کو رضی، بھائی جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کرے درندہ ہی ہے نا، یہ کہہ رہا ہوں. اور وحشی کون ہے؟ وحشی کون ہے؟ جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا. سرکار نے کہا تو نے کلمہ پڑھا، میرے نام کے صدقے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا بھائیوں، میرے جو طالب علم بھائی ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹ بھائی ہیں، وہ مطمئن ہو کہ اپنے نوکر کو سنا کریں. چونکہ میں زیادہ مطالعہ میرا اہل سنت کتابوں کا ہے، میں شیعہ کتابیں تھوڑی پڑھتا ہوں، بھائیوں کی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں. ہاں یہ یاد رکھیے. مطمئن، جی بسم اللہ، مطمئن ہو کہ آپ سنیے. اچھا، تو 2 باتیں ہو گئی. بیٹا بیٹھ جاؤ. جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولے وہ مصطفیٰ، جو وحشی درندوں کو رضی اللہ بنا دے وہ مصطفیٰ. کتنی باتیں ہو گئی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے میرے ساتھ گنتی میں بھی شریک رہنا ہے. تیسری بات، جناب سلمان فارسی. کون مصطفیٰ؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سادات کی چوکھٹ پہ نہیں آئے تھے تو فارسی تھے، اور جب سیدوں کے دروازے پہ آ گئے تو سلمان محمدی بن گئے. تو فارس کا مطلب ہے بھائی جی ایران، ان کا پچھلا پنڈ وہ تھا.
تو پچھلے پنڈ سے، پنڈ یعنی گاؤں، پچھلے پنڈ سے 3-4 بندے ملنے کے لیے آ گئے، آپس میں صلاح کی کہ یار سنا ہے سلمان وہاں کوئی مدینے کے سید ہیں، ان کا نوکر بنا ہے، اور سنا ہے کہ وہ عجیب و غریب کرامتیں اور معجزے دکھا رہا ہے، آؤ ذرا چل کے دیکھیے کتوں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ 4-5 بندے جب پہنچے، جناب سلمان نے پہچانا، او یا بھائی فتو فلانا فلانا کی حالت تیرا ٹھیک ہو، ایسا ہے کہ تم یہاں بیٹھو، میرے گھر میں وقتی طور کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی گیا آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرپور والوں، جناب سلمان کے گھر میں کچھ کھانے کو ہونا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ اونچی جگہ پہ رہتے ہیں، اونچی بات کرنے لگا ہوں دھیمے لہجے میں، اس لیے کہ سلمان اپنے گھر میں رہتے نہیں تھے، وہ صرف 2 جگہوں پہ رہتے تھے، یا جلی کے گھر میں یا علی کے گھر پہ۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ بسم اللہ کریں، یہ بسم اللہ سرکار شکریہ۔ یا تو وہ بسم اللہ بھائی جان آپ کی مہربانی آپ کی محبتیں ہیں، یا تو وہ جلی کے گھر میں تھے یا علی کے در پہ تھے، تیسری کوئی جگہ ہی نہیں ان کی۔ جی بسم اللہ، ان کی جگہ ہی نہیں، یہ تعداد تو ان کی آپ کو پتا فہرست میں شامل ہی نہیں ہے، وہ 2 ہی جگہوں پہ رہتے تھے۔ تو کہا کہ اچھا مصطفیٰ، جی بسم اللہ، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مصطفیٰ کی تیسری بات کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم یہاں بیٹھو، میں بھی جاتا ہوں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست بابا جی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے جناب سلمان نکلے، اور بابا جی وہ آج بھی میرپور والوں وہ ویرانہ موجود ہے۔ یہ کرونا جیسی وبا سے بلا سے پہلے میں جب جنوری میں گیا ہوں نا اسی سال، بابا سبیش شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی مجلس مس کر کے گیا تھا میں عمرہ پاک پہ، تو مکہ مدینہ کی میں زیارتیں کر کے آیا ہوں۔ تو آج بھی پہلے تو یہ دعا ہے کہ محمد پاک کے ذکر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی لے جائے۔ تو وہ آج بھی وہ ویرانہ موجود ہے، یعنی کالی کالی پہاڑیاں ہیں، مدینہ کی آبادی سے بالکل نظر آتی ہیں، وہ ہوٹل سے نہ نظر آتی ہیں، پہاڑیاں موجود ہیں۔ تو جب سرکار نے وہ ویرانے کے پاس گئے تو وہ جو مہمان تھے نا وہ گھر بیٹھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو چیک کرنے آیا تھا نا کہ سلمان کرتا کیا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے، حالانکہ جناب نے کہا تھا یہاں بیٹھو، وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ چھپتے چھپتے پیچھے آ رہے ہیں۔ ادھر سے آبادی کراس ہوئی، ویرانہ آیا، اور جتنی بلند آپ کی پہاڑیاں ہیں نا، اتنی بلند آپ کی معرفت ہے، آپ نے درمیان ہی سے جملہ میرا منہ سے چھین لینا ہے۔ اور جو ہی ویرانہ آیا، جناب سلمان نے اذان کی طرح 2 ہاتھ کانوں پہ رکھے اور فرماتے ہیں ایک ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت، بسم اللہ کریں، مولا آپ کے چہرے سلامت رکھے، جی بسم اللہ۔ جی بابا جی، ایک بابا امتیاز صاحب جی، ایک ہرن سے گزارش ہے وہ ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے، میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، جلدی سے ہرن آ جائے۔ بابا جی ابھی جناب پاک سجدہ کے نوکر نے یہ جملہ کہا تھا، سامنے سے تر و تازہ ینگسٹر نوجوان سا تازہ ہرن درود پڑھتا ہوا سامنے سے ظاہر ہوا، اور اس نے اپنا ماتھا آ کے جناب سلمان کی جوتی پہ ٹیکا، اور اپنی زبان میں کہتا ہے چونکہ آپ بطول کے نوکر ہیں، جہان آپ کا نوکر ہے، آپ بطول کے نوکر ہیں، ساری کائنات آپ کی نوکر ہے، یہ لیجیے میرے کان سے پکڑیے اور مجھے لے جائیے اور جا کے تکبیر ڈالیے۔ ابھی یہ ہرن اور جناب سلمان میں باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے مہمان فوراً درخت کی اور سے باہر آئے، وہ کہتے ہیں سلمان اتنی ساری عزتیں، کیا جانور بھی تیری، مصطفیٰ کون، کیا جانور بھی تیری باتیں مانتے ہیں؟ فرمایا یہ تو جانور ہے نا، پوری کائنات مان دیا تھا، کب سے؟ فرمایا جب سے بطول کے بابا نے کہا ہے نا منا اہل البیت، میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، پورا آزاد کشمیر زندہ باد ہے جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے جی، بسم اللہ کرو۔ کہ جب سے، جی بسم اللہ، جب سے سیدوں کے نانے نے کہا ہے نا منا اہل البیت، میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک کن فیکون کا مصداق آپ کو پتا ہے کون ہے؟ میں جو کہتا ہوں وہی، باتیں کتنی ہو گئی؟ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، کون مصطفیٰ۔ اور اس بات پہ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جیسے میں نے پہلے دعا مانگی، اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، مکہ لے جائے، اور اللہ ہمیں وہ جگہ دکھائے جو ٹوٹی تھی اور علی آیا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، تو اس لیے اب میں پھر دعا مانگتا ہوں، آپ نے پھر آمین کہنا ہے۔ یہ جو چوتھا جملہ ہے محترم بھائیو، یہ جملہ ہے میرے بادشاہ علی کی زیارت کا۔ پہلے دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو نجف شرف لے جائے، اور مولا علی کے صدقے میں، اے مولا میرے مولا علی کے صدقے میں ایسا کرم کر کہ ہم اس سید کی بھی زیارت کریں جو مصطفیٰ کے یہاں بیٹھتا تھا۔ پاک شبیر کی زیارت کے لیے اللہ ہمیں کربلا بھی بلائے۔ لو جی، میرے مصطفیٰ کون، چوتھی بات میرے مصطفیٰ پاک کی زیارت کا جملہ ہے بھائی جان، السلام علیک یا خاصف النعل وکاشف المحل۔ اللہ کی قسم جب میں نے پڑھا تھا تو میں پریشان ہوا تھا، اب آپ کو پریشان نہیں کرنا، ڈائریکٹ ترجمہ بتاتا ہوں، اور آپ نے بول کے، بھائی نوجوان بھائیوں، آپ نے بول کے بلند آواز سے پھپھڑے کی طاقت لگا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی عزت کے کیسے قائل ہیں۔
अस्सलामु अलैका या खासिफ अन्नाले व काशिफ अलबोले। तर्जुमा करो, मुश्किलें हल करने वाले अली पे सलाम और उस अली पे सलाम जो मोहम्मद की जूतियां गांठता है। बाबा जी खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, बादशाह आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। हैदरी सरकार बहुत शुक्रिया। अल्लाह बादशाह आपको सलामत रखे। उस पाक अली पे सलाम जो मुस्तफ़ा की जूतियां गांठता है। अच्छा, मैं चूंकि एक तालिब इल्म हूँ, एक अनपढ़ आदमी हूँ, शिया आदमी की जूतियां चूमने वाला बंदा हूँ, मेरी समझ में ये सलाम नहीं आया था। इंसान को सच बोलना चाहिए। मैं अभी बाबा जी अकमल शाह जी के घर से वजू करके वहीं पे नमाज पढ़ के अब मेंबर पे आया हूँ। तो इसका मतलब यह है कि झूठ की गुंजाइश नहीं है। पढ़ के नमाज आया हूँ और अब नमाज बचाने वाले का जिक्र कर रहा हूँ। झूठ की गुंजाइश नहीं ना। मैंने जब पढ़ा था मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं आपका खादिम बन के मुश्तरका सवाल पूछता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जुमले पे हर बंदा जरूर बोले। जो बंदा कहता ना मैं कभी नहीं बोले, वो भी बोले, क्योंकि कायनात के सैयद 12 हैं, 12 का सैयद मुस्तफ़ा है। ये है मजहब जाफरी का अकीदा, ये है मातम करने वालों का अकीदा, ये है काले कपड़े पहनने वालों का अकीदा, ये है जंजीर से खून निकालने वालों का अकीदा, ये है अली वलीउल्लाह को अपनी जान ईमान समझने वालों का अकीदा। क्या कि कायनात के सैयद 12 हैं और 12 के सैयद मुस्तफ़ा है। अब मैं पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह, ध्यान कर जाए पुत्र, बैठ जाओ जल्दी से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह आप तो फरमाते हैं धड़ मैं हूँ, सर अली है, शहर मैं हूँ, धन अली है, मूसा मैं हूँ, हारून अली है, मैं अली का भाई, अली मेरा मुकदी मुकाइए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हर हलाली सैयद हो, गैर सैयद हो, शिया हो या सुन्नी हो, यहाँ आता ही वो है जिसकी माँ पाकीज़ा होती है। मैंने गालियाँ देके कभी दाद नहीं ली। हर हलाली शिया हो, सुन्नी हो, सैयद हो या सैयदों का मेरी तरह नौकर हो, हर भाई पे वाजिब है बोलिए या रसूल अल्लाह, इधर से आप कहते हैं अली मुझ जैसा मौला है, उधर से जब जूती टूटती है आप अली को दे देते हैं। बादशाह जी को गुस्ताखी माफ। बादशाह जी क्या मदीने में मोची नहीं थे? अगर कोई मोची नहीं था तो क्या सहाबा इकराम नहीं थे? आप किसी सहाबी को देते, सहाबी सारे आपके नौकर हैं, वो तो चूम चूम के आपकी जूतियां गांठ देते। ये क्या बात हुई? इधर से कहते हैं अली मुझ जैसा मौला है, उधर से जब भी जूती टूटे आप अली को देते हैं। आवाज रिसालत आई जाएगा मुझ तो भाई हिज़यान ना पक, अब इतनी गर्मी नहीं है कि तेरा दिमाग पिघल जाए। हिज़यान ना पक, तुझे पता नहीं इस जुत्ती ने वहां जाना है जहां कोई नबी नहीं जा सका। अगर अली के अलावा कोई और छू ले ये वहां जाने के लायक नहीं रहेंगे। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ये है मीरपुर का मजमा जी, ये है मीरपुर का मजमा। हर भाई दोनों हाथ उठाए गदीर की याद ताज़ा करते हुए हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयदा आपकी जवानियां भाई सलामत। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। मेरे जो करीब भाई बैठे हैं आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, आपने भी थोड़ा थोड़ा बोलना है, ठीक है? मौला आपको सलामत रखे। बातें कितनी हो गई? लो जी, 5वीं बात शिया किताब, शिया मौलवी। 6ठी बात सुन्नी किताब, सुन्नी मौलवी, क्योंकि साथ साथ लेके चलना है। अब जो बात करने लगा हूं ये मैं आप अपने सुन्नी भाइयों की किताबों से 50 किताबों से दिखा सकता हूं। ये जो अभी बात करने लगा हूं रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? चूंकि मोबाइल का उन्होंने मना किया इसलिए मैं कहता हूं आप जहन में रिकॉर्ड कीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है। 50 किताबों से मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं जो नाम ले रहा हूं वो फिलहाल शिया किताब का है। हक़्क़ुल यकीन किताब, हजरत अल्लामा बाकर मैसी, जिल्द नंबर 2, उसमें जुमला लिखा है 5वीं बात मुस्तफ़ा कौन है। जितनी तवज्जो से आप सुन रहे हैं, अल्लाह की कसम यही चाहता है कि मिंबर छोड़ के आपके कदम चूमूं फिर वापस आ जाऊं, तवज्जो चाहता हूं। वो लिखते हैं कि मदीने में, कोई बात नहीं छोटे बच्चे हैं, मदीने में जब किसी गरीब बंदे की, माड़े बंदे की भाई बेटी की शादी होती, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पूरी बारात के लिए खुशबू का इंतजाम कर सके, क्योंकि पहले ज़माने में परफ्यूम खुशबू सारी बारात के लिए होती थी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है। उच्ची बोलना है सारे, ताकि जमाना समझे कि शिया अली के मौला का जिक्र कैसा सुनते हैं। तो वो फरमाते हैं इसका तरीका ये होता था कि वो माड़ा मस्कीन बंदा पानी की बाल्टी भर के बतूल के बाबा की खिदमत में लाता,
सैयद दो जहां उससे चंद कतरे लेके उस मुंह में डालते जिससे कुरान निकलता है। भाई जिसे डालना निकला समझ आया, उसकी पाकीज़ा माँ को भी सलाम है जी, बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह। उस पाकीज़ा दाहने अतहर में डालते जिससे कुरान। अच्छा लिखा है कि जब वो पानी सैयद दो जहां की जुबान से टच होके रिवर्स बाल्टी में जाता, कुल्ली की सूरत में, या हमारी गुजरांवाले की जुबान में करूली की सूरत में, जब पानी रिवर्स होता तो सारी बाल्टी, सारा पानी इत्र में, परफ्यूम में कन्वर्ट हो जाता। सारी की सारी बाल्टी परफ्यूम बन जाती। दो बारी हो रहा ना जी ताकि तवज्जो हो जाए। सारी बाल्टी परफ्यूम बन जाती, सारी बाल्टी परफ्यूम बन जाती। कैसे? इसका मतलब है अल्लाह ने पाक सज्जदों के सैयद की जुबान में कोई खुशबुओं के समंदर रखे हैं कि एक कतरा सैयद की जुबान से टच होके बाल्टी में जाए तो सारी बाल्टी परफ्यूम हो जाए। हजरत साहब सर पे कुरान रख के बताइए वो बदन कितने खुशबूदार होंगे जो मोहम्मद की जुबान चूस के जवान हुए। बादशाह आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। जो हाथ बुलंद है जी किसी कमीने के मोहताज ना हो। भाई जान बिस्मिल्लाह करना। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे जी बिस्मिल्लाह। इतनी खुशबू भाई, खुदा आपको सलामत रखे भाई। इतनी आपकी जिंदगी दराज हो, आपकी जिंदगी आपके सदके में हमारी जिंदगी है। क्या कहा जी? ऐसी खुशबू, इसका मतलब है खुशबुओं के समंदर यहाँ रहते हैं। अच्छा पता नहीं पिछले साल लफ्ज़ कहा था, किसी को याद है या नहीं? अगर आपको जुबान का जुमला याद हो तो कह देता हूँ, वरना मेरी कसम थी साल के कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं पढ़ूंगा जो पिछला दोहराया हो। चलिए छोड़ता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि यार पहले दिन ही शुरू हो गया। छोड़िए जी, बातें कितनी हो गई? छठी बात, सुन्नी मौलवी सुन्नी किताब। मैं पहले सुन्नी भाइयों के आलिम का नाम बिस्मिल्लाह पढ़ के लूँ, ताकि इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अल्लाह दर्जात ही, बहुत बड़े ये ऐसे आलम दीन हैं बड़े सगीर पाको हिंद में। अहले सुन्नत उलमा सीने पे हाथ मार के कहते हैं अभी माँ ही पैदा नहीं हुई, बेटा कहाँ से पैदा होगा जो इतना बड़ा आलिम बने जितने बड़े शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी थे। इतने बड़े आलम दीन। मदारिज नबुव्वह किताब है और वो भी अच्छी खासी मोटी, 2 ईंटों के वजन के मुताबिक उसका वजन है। अगर इंसान ऐसे किसी को सर पे मारे अगले दिन डेथ भी हो सकती है। सचमुच कह रहा हूँ, यानी इतने ज्यादा उसके बड़े वर्क हैं, इतनी मोतबर किताब है, इज्जत में बड़ी है और ज़ाहरी वजन भी बड़ी है। उसमें वो लिखते हैं, सारे बोलना जी सुन्नी दी गल है, हर शिया बोले, सुन्नी भाई बेशक चुप रहे, शिया बोलेंगे। वो लिखते हैं छठी बात, कौन मुस्तफा? वो फरमाते हैं मुस्तफा उस पाक सज्जदुस सादात को कहते हैं जब जंगल से गुजरते थे तो दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे। मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। जो जुबानें जिक्र मुस्तफा में बोलती हैं उन पर कभी फारिज नहीं होता है। मेरे भाइयों पहले सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि शिया जाकिर था और उत्तों तो लगा सी विचों नहीं। इस वजह विचों नहीं गल सुन लो। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, अली जन वलीउल्लाह की कसम, अगर ये बात सच है कि अली का नाम लेना एक कुरान का सवाब है, मुझे अली और कुरान की कसम मुस्तफ़ा का नाम लेना 7 कुरानों का सवाब है। ये है मजहब जाफरी का अकीदा। और आप मुझसे पूछें ज़ैगा मुझ तो भाई गिरेबान पकड़ के पूछें तेरे पास दलील क्या है, तो मेरे पास दलील मेरा कलमा है। मेरे कलमे में ये गवाही है मुस्तफ़ा पहले है और मुर्तज़ा बाद में, ये गवाही है। मौला आपको सलामत रखे। लो जी सरकार वो फरमाते हैं कि जब जंगल, मेरे भाई अभी थके तो नहीं है ना, फरमाता है जब सरकार जंगल के करीब से गुजरते थे, मेरा जी चाहता था मैं ये मौलवी उतार के एकदम मलंग सामने आ जाता। मैं मेरे भाई सरकार शुक्रिया। कितनी की देर बंदा मौलवी बर्दाश्त करे? मौला आपको सलामत रखे। कई लोग मेरे इस रवैये से तंग हैं, वो कहते हैं ना करेगा। मैं कहीं नहीं यार तुझे नहीं पता, मौलवी से हिसाब होगा, मलंग से हिसाब भी नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे लुत्फ आता है। मौला कहते मलंगा से जाने ही आए जी। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो सामने मतलब तरफ तवज्जो रखिएगा। आज तो 2-3 महीने से पढ़ के ज्यादा सफर करके आया हूँ, कल से शायद जितना आप कहेंगे मैं शायद थोड़ा बैठूं और जनाब खिदमत में खड़े होकर नौकरी पेश करूंगा। अब भी थोड़ी देर बाद उठ जाता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाते हैं जब जंगल से गुजरते दरख्त बाबा जी झुक झुक के सलाम करते, और जब पहाड़ों से, आपके पहाड़ है, पहाड़ों से गुजरते तो पहाड़ों में जुम्बिश आती, जिसे आप जलजला कहते हैं। जुम्बिश में आके पहाड़ों से आवाज़ आती, दो जहां के सैयद पे सलाम हो। जब पथरीली ज़मीन से गुजरते तो बेजान मोटे मोटे पत्थर उड़ उड़ के सैयद दो जहां को बाबा जी सलामें करते थे। और जब कभी नदी, दरिया या समंदर के करीब से सैयद गुजरते थे तो पानी का एक एक कतरा हिल हिल के कहता था दो जहां के सैयद पे सलाम हो, दो जहां के सैयद पे सलाम हो। हत्ता कि जब सरकार मिराज के लिए उठते हैं, जिब्रील सलाम कहता है, मिकाईल सलाम कहता
کہتا ہے, اسرائیل سلام کہتا ہے, اسرافیل سلام کہتا ہے, حتیٰ کہ لو سلام کہتی ہے, قلم سلام کہتا ہے, کرسی سلام کہتی ہے, اور عرش تو آپ کو پتہ ہے نا وہ تو صرف جوتیوں تک ہی رہتا ہے نا, عرش چھٹ کے جانا, عرش تو جوتیوں تک رہتا ہے نا. عرش سلام کرتا ہے, لو سلام کرتی ہے, قلم سلام کرتی ہے, مشیت سلام کرتی ہے, ارادہ سلام کرتا ہے, خود خدا کی قسم قرآن سلام کرتا ہے, تورات سلام کرتی ہے, انجیل سلام کرتی ہے, زبور سلام کرتی ہے, حتیٰ کہ دو جہاں چھوڑو, دو جہاں کا خالق و مالک اللہ, خود اللہ مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے. تحت سرا سے لے کے عرش بری تک کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے. باتیں 6 ہو گئیں, یہ 6 کی 6 میری تھیں, میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اب جو پڑھنے لگا ہوں یہ لفظ میرا نہیں ہے, یہ لفظ ہے شوکت رضا شوکت ملتان والے شاعر ہیں, یہ ان کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے. اس لیے جو بولے گا ان کا ثواب ان تک پہنچے گا, اور خدا ان کی شاعری میں مزید وسعت عطا فرمائے گا. یہ جملہ میرا نہیں ہے, 6 میری باتیں تھیں, یہ جملہ میرا نہیں ہے. سنی مولوی کے منہ سے سنا کہ تحت سرا سے لے کے عرش بری تک پوری کائنات مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے. اب شوکت و شوکت میں یا علی کہہ کے قلم اٹھایا اور جملہ لکھا, اور فرماتے ہیں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیے, صدقے جاؤں جی, میر کو زندہ باد, حیدری. میں بسم اللہ کروں بھائی, آپ کی مولا جوانیاں سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ, بادشاہ آپ کو سلامت رکھے جی, بسم اللہ. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے, 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات, اور 7ویں بات اتنے دھیمے لہجے میں کہوں گا کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں, آرام سے. میرے بھائی میرے اس لہجے پہ پریشان تو نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بات پہنچنی چاہیے, زور سے ہو یا نرمی سے ہو, بات پہنچنی چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زیادہ کچھ لوگ ایسے نفیس بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار مولوی شور زیادہ کرتا ہے, کام کی بات تھوڑی کرتا ہے. تو اس لیے میں کہوں کہ ذرا آرام نام سے بھی بات ہو جائے. میرے سارے بھائی تیار ہیں نا؟ میں بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ. سرکار سید بابا جی اجازت ہے؟ اللہ آپ کو سلام. بابا جی تھوڑا سا پہلے نہیں تشریف لے آئے؟ اچھا چلے تھوڑا سا جی, بسم اللہ بابا جی. اس کا مطلب 5 منٹ پڑھ لیں. چلے مولا آپ کو سلام رکھے. بابا جی سے جاتے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی سامنے محترم جی, بسم اللہ بابا جی. اللہ سفر بے خطر فرمائے, خدا زندگی کی حفاظت رکھے. ہمارا مان ہے, ہمارا فخر ہے, ہمارے علاقے کی شان ہے بابا جی. سامنے محترم باتیں ہوئی تھی 6. 7ویں بات دھیمے لہجے میں آرام سے سنیے, بغیر داد کے سنیے. 7ویں بات, کون مصطفیٰ جس پاک سید پہ درود واجب ہو. میں نے کہا تھا داد نہیں چاہیے, یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے, آپ کی مہربانی. پھر بھی آپ بولے, اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. میں پھر جملہ دہراتا ہوں. پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جس پہ درود مستحب نہیں بھائی, واجب ہو. یعنی اگر آپ سید پہ درود نہ پڑھیں تو نماز تماچا بن کے ریورس آئے گی. ٹھیک ہے, تو پاک, تیسری بار کہہ رہا ہوں, پاک مصطفیٰ کس سید کو کہتے ہیں جس پہ درود واجب ہو. درود کون سا؟ شیعوں والا نہیں بھائی جی, سنیوں والا درود پڑھوں گا. 2 وجہوں سے, کیونکہ محبت کا پیغام ہے نا. 2 وجہ, ایک اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, تعداد میں ہم سے زیادہ ہے. دوسرا اس لیے کہ جی بابا جی, دوسرا اس لیے کہ ان کا درود ہمارے درود سے بڑا ہے. ہمارا درود ان کے درود کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ہمارا درود کیا ہے شیعوں کا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, بس درس ختم. یہی ہے. ہمارے بھائیوں کا درود کیا ہے وہ پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو چھوٹے بچے ہیں یا جو جن کی ایج مجھ سے تھوڑی ہے, وہ میرے لیے بیٹوں کی جگہ, بھائیوں کی جگہ, ان سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں آپ کے سامنے 4 ہستیوں پہ درود پڑھتے ہیں ہمارے سنی بھائی. بیٹا میں نام لوں گا آپ کہیں گے 1, میں نام لوں گا آپ کہیں گے 2, میں نام لوں گا آپ کہیں گے 3, میں نام لوں گا آپ کہیں گے 4. میرا سارا محترم مجمع حاضر ہے. آپ نے 1 کہنا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی بھائی کن ہستیوں پہ درود بھیجتے ہیں؟ 4 پہ. پہلی جی ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. اب یہ نکر, یہ جو میرے زیادہ پیار والے بھائی ہیں, آپ بھی سنیے جی, آپ بھی بولیے جی. ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. لو جی, اب آپ کے سامنے میں نے ہاتھوں کے ساتھ سٹیپ بنا کے 2 مرتبہ پیش کیا ہے. اب بھی شیعہ ماں کا, میں نے دیکھیں میری زد دوسرا تو ہے ہی نہیں, میں تو اپنوں سے زد لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں سنی بھائی نہ بولیں 100 بسم اللہ نہ بولیں, ہمارے بھائی ہیں, مہمان ہیں, ہماری جان ہے, نو پرابلم. نواں شیعہ چپ رہے, روڑا ہی کو نہیں, آپ ہی سے آنا ہو جائے گا. 2 بندے نہ بولے دکھ ہے, ایک حسبی نسبی سید, ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے, وہ نہ بولا پھر دکھ ہے. اچھا ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود, سارے بولے تھے جس کی ماں شیعہ ہے. اس کا مطلب اب مجھ سے پوچھیے 7ویں نمبر پہ مصطفیٰ
मुस्तफा किसे कहते हैं? मैं आपके पांव चूम के कहूंगा, मुस्तफा उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद है। सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह कर दी। बाबा जी मौला आपका साया सलामत रखे। पाक मुस्तफा उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद है और जिसके, बाबा जी इसका मतलब है 2 दरूद 24 घंटे हाजी बन के जिस पाक सैयद को किबला समझ के तवाफ करें, वो ज़हरा का बाबा मुस्तफा है। मैं जुमला फिर दोहराता हूं, 2 दरूद हाजी बन के जिस पाक सैयद का 24 घंटे तवाफ करें, आपका हक बनता है उठें, मेरा गिरेबान पकड़ें, मैं सैयदों का सबसे छोटा नौकर हूं। मुझे आप पूछिए जाएगा, मुझे तो भाई 2 दरूद भी समझ आती है, हाजी भी समझ आता है, तवाफ भी समझ आती है, किबला व काबा भी समझ आता है, घंटे कितों कटे? बाबा जी हक है ना आपका हक है, क्योंकि 24 हार्स, ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है, कुरान तो अरबी है। सानू पागल समझे, पाकिस्तान से आके कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं। कितने ले है 24 घंटे? अभी बताता हूं, आपके कुरान में लिखा है, ना लिखा हो छुरी आपकी शारक मेरी। सैयद को गवाह करके मिंबर पे कह रहा हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं, 2 आयतें पढ़ूंगा खुद ब खुद 24 घंटे उसमें से बरामद हो जाएंगे। पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान तो सा करना है, ध्यान ना बोलना, कुरान पे बोलना सारा चीज़, हर मातमी कुरान पे बोले। पहली आयत, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके मलाइका शादी दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी के, और आयतल कुर्सी गवाह है, ना अल्लाह सोता है। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जी मैं बिस्मिल्लाह करा, सरकार मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ना अल्लाह सोता है और ना बाबा जी फरिश्ते सोते हैं। इसका मतलब है 24 घंटे दरूद जारी है, 24 घंटे दरूद जारी है। क्या मेरे मुर्शद से लेके आखिरी भाई तक इजाजत देते हैं कि एक जुमला उठ के पढ़ना? इसका मतलब है 24 घंटे दरूद जारी है। बाबा जी 24 घंटे मीरपुर वालों दरूद जारी है, 24 घंटे जारी है। और सीगा है मुजारे, बाबा जी को पता है कि मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। सीगा है मुजारे का, सल्ला युसल्ली युसल्लूना फेल मुजारे का तीसरा सीगा है। फेल मुजारे उस फेल को कहते हैं जिसमें 2 जमाने पाए जाएं, अभी, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी अल्लाह कहता है मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते रहेंगे। इसका मतलब है मुस्तफा वो जात है जिस पर 24 घंटे दरूद जारी है। दरूद भेजने वाला अल्लाह पाक है, खुद जो भेज रहा है वो दरूद पाक है। अब जिस पे दरूद आना चाहिए उसे क्या होना चाहिए, ये तेरी अपनी मर्जी है। तू जितना मर्जी दरूद बढ़ाता जा, वाला आले ही वाही कहते बढ़ाता जा, लेकिन इतना ख्याल रहे दरूद 24 घंटे उस पे आएगा जो दिन के 12 बजे भी पाक हो, जो रात के 12 बजे भी पाक हो। देखो सैयद आदा बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे अल्लाह ने हाथ दिया ही अली के जिक्र के लिए, वो हाथ उठाए जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मौला आपकी जिंदगी दराज सुनाए, खुदा आपको सलामत रखे। जो दरूद भेजता है वो अल्लाह पाक, जो कुछ भेज रहा है वो दरूद पाक। अब जिस पे दरूद आए बाबा जी उसे भी पाक होना चाहिए। अच्छा पाक से याद आया, वो शिया एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, 12 इमाम 14 मासूम थे, मेहरबानी 5 तन पाक है। शिया कहते भाई आज़ाहिर है इंसान हूँ, खताकार हूँ, बाबा जी गलती हो सकती है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, गलती हो सकती है। तो अच्छा 5 तन पाक कहते हैं। 5 तन पाक का ही शुक्र है जेड़े मौलवी की गल कर लगा मर गया, शुक्र है। अच्छा उसने जुमला कहा था, वो कहता है ये लफ्ज़ ही सही नहीं है 5 तन पाक, कहता है लफ्ज़ है 5 3 पाक, 3 बाबा जी। तो बाबा जी बुजुर्गों ने कहा था कि उनकी कब्र पे जाकर मैंने कहा मौलवी साहब तो सीधा ही 8 तन पाक आ लो। बाबा जी 5 तक 8। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो फौत हो गई, शुक्र है वो फौत हो गई। भाई जिस जो 5 तन पाक से बाबा जी जो बुग़्ज़ रखता है वो शुक्र है मारी जाए। ये तो ठीक है ना बाबा जी, ये तो ठीक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीब बिस्मिल्लाह। अब दूसरी बात कहूँ, वो तो मर गया और एक दूसरे हैं अल्लाह करे वो भी, भाई जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मन है उसके लिए मौत की बददुआ करनी चाहिए। शुक्र है वो भी अल्लाह करे तो छेती। उन्होंने कहा कि नहीं 5 3 तो वाली गल कोई नहीं, सब तन पाक।
बाबा जी सुन लिया जी, सदके सब बोलो जी क्या, सब बोलो जी क्या। वो कहते हैं नहीं शिया काले कपड़े पहन के शोर करते हैं, पांच तन पाक, ये लफ्ज सही नहीं है, सब तन पाक हैं। फिर लोग कहते हैं शिया गरजते हैं, भाई गरजे ना तो क्या करें, हम तो खुदा की अजमत के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। तू ही बता हजरत साहब, तू कहता है सब तन पाक है, कुरान मेरी तरह सर पे रख और हमारी नहीं अपनी किताबें खोल के देख, मस्जिद नबवी में सब तन के दरवाजे खुलते थे या पांच तन का दरवाजा? बाबा जी सबके जाना, मौला आपके हाथों को सुना। बिस्मिल्लाह। शादी खुदा आपका साथ सलामत रखे। सरकार बिस्मिल्लाह। मौला आपकी जवानियां सलामत भाई रखे, खुदा आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए। अच्छा, इसका मतलब है पंजतन पाक ही असल लफ्ज है, जो आता है वो पाक, जो भेजता है वो पाक। बाबा बिस्मिल्लाह। बाबा जी अल्लाह आपको सलामत रखे। और जिन पर दरूद आता है वो पाक। अच्छा अब जरा सुनिएगा, बातें कितनी हुई थी, मेरा पीर आ गया, ज़्यादा जहमत नहीं देनी, 2-3 मिनट में मेंबर छोड़ता हूँ। 7 बातें हुई थी ना, 7 हुई थी। जिस पे दरूद वाजिब हो वो मुस्तफ़ा कितनी हो गई? और 8वीं बात मैं नहीं कहूँगा, जनाब फरमाएंगे, और अभी आप फरमाने लगे हैं। 8वीं बात सवाल, फसअलू सवाल करो। पाजी क्या मेरे मुस्तफ़ा पर सदका हलाल है? क्या है? हराम है ना? अकमल शाह हो, इम्तियाज शाह हो, बवाली रजा शाह हो, ये जिनको भी हम कहते हैं शाह जी, पता है क्यों कहते हैं? मुस्तफ़ा की जुत्ती का सदका। तो मुस्तफ़ा है ना, कयामत तक पैदा होने वाले सैयद पे भी सदका। अब मैं 8 दलीलें, सैयदों का सबसे छोटा नौकर हो गई, 8 दलीलें जोड़ के, 8 नहीं कह रहा, 8 कह रहा हूं, मुझे 8 में मजा आता है। 8 दलीलें जोड़ के नतीजा आने लगा है। इसका मतलब है पाक मुस्तफ़ा उस पाक सैयदों के सैयद को कहते हैं जिस पे दरूद हलाल हो, सदका हराम। मौला आपको सलामत रखे, पाक सैयदा आपके हाथों को सलामत रखे। मैं जुमला फिर दोहराता हूं चूंकि नतीजा बड़ा है, और इशारा करूंगा सोशल मीडिया की तरफ, वो इशारा आपने समझना है। फिर सुनिए, पाक मुस्तफ़ा उस पाक सैयद को कहते हैं शाह जी जिस पे दरूद हलाल हो, बाबा जी सदका हराम हो। एक मौलवी साहब सफेद दाढ़ी वाले, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि हमने तफरके वाली बात तो करनी नहीं है ना, प्यार की बात करनी है। वो कह रहे थे बंद कराओ शियां दी अजान जड़ी स्पीकर च हुंदी है, सानू अरबी च गालां कटदे ने, अहे खलीफा तो बिला फजल कह के हमें गालियां देते हैं। ना मौलवी साहब, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो मारना भी हो तो अपने आप को मारते हैं, हम तो किसी को मारने के कायल ही नहीं है। मौलवी जी हम तेरी जिद में अली को बिला फजल नहीं कहते, मुझे अली की कसम तू अपनी किताबें खोल और अली के अलावा वो बंदा दिखा जिस पर मोहम्मद की तरह दरूद हलाल हो, सदका हराम हो। भाई बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, जिसे अली ने हाथ इसलिए दिया है कि मुस्तफा के जिक्र में उठे सारे बोले जी बादशाह आपको सलामत रखे। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया। भाई हम किसी की जिद में नहीं कहते, मौला आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह करा। तू मौला अली के अलावा वो बंदा तो दिखा जिस पर मुस्तफ़ा जैसा, मुस्तफ़ा की तरह दरूद हलाल हो और सदका। लफ्ज़ आखिरी, और इंशाअल्लाह फिर कल से यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, टाइम काफ़ी हो गया, बाबा जी ने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद की आयत सुनिए और सलाम करता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी के। अब अगला फिक्रा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना मीरपुर वालों, या अय्युहल्लज़ीना कश्मीर वालों, क्या है? आमन। मौला आपको सलाम। भाई मैं करूँ, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालों। अमर का सीगा सल्लू, बाबा जी अमर का सीगा है, बाबा जी ये मुखातब का सीगा जमा के लिए सल्लू, तुम सब। कुरान का तुम भी पढ़ो। कौन कौन? कश्मीर वालों, मीर पर ना ईमान वालों। तो ये जब अल्लाह कह रहा था कि ए ईमान वालों तुम भी पढ़ो, तो क्या मीरपुर सामने बैठा था? पाकिस्तान बैठा था? कौन था? सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, शम्माए रिसालत के परवाने थे ना। और अल्लाह उन्हें कह रहा था कि दरूद पढ़ो। मैं 4-5 नाम लेता हूं, बरकत के लिए इजाफा हो जाएगा। अल्लाह कहता सलमान दरूद पढ़ो,
मिकदाद दरूद पढ़ो, हुज़ैफा दरूद पढ़ो, अम्मार यासिर दरूद पढ़ो, अबू दरदा दरूद पढ़ो, अबू अयूब अंसारी दरूद पढ़ो, खुज़ैमा दरूद पढ़ो, ज़ुश्शहादतैन दरूद पढ़ो, इब्ने मसूद दरूद पढ़ो, इब्ने अब्बास दरूद पढ़ो। ये सारे सहाबा के नाम है और हर शिया होता ही वो है जो सहाबा की जूती चूमना सवाब समझता है। अल्लाह कुरान में कह रहा था, ऐ सहाबियों, मुस्तफ़ा मेरे प्यारे के प्यारो, मेरे प्यारे के प्यारो, मेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत करने वालों, तुम भी दरूद पढ़ो। 5 बंदे बोलने कुरान की कसम राजी हूं, क्योंकि दाद हाथ से ज्यादा हो गई, मेरी इतनी औकात ही नहीं जितना ऊंची ऊंची आप बोले हैं, दाद हो गई, लेकिन 5 बंदे बोलो मैं राजी हूं। जब कहा ना पढ़ो दरूद, सहाबा ने हाथ जोड़े, कहा या रसूलल्लाह दरूद क्या होता है? बादशाह जी कैसे पढ़ना है? बादशाह जी कब पढ़ना है? अरे आप हैरान हो रहे हैं ना, आप हैरान हो रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? खुदा की कसम हुआ था, चूंकि सरकार से पहले नमाज का किसी को नहीं पता था। जब आयत आई अकीमुस्सलाह, सहाबा ने पूछा सरकार किवें? सरकार ने फरमाया ऐसे। रोजा किवें? ऐसे। हज कैसे? ऐसे। बताया था। इसी तरह बाबा जी जब दरूद का हुक्म आया था तो सरकार से सहाबा किराम ने पूछा था, या रसूलल्लाह दरूद क्या होता है? कैसे पढ़ना है? कहां पढ़ना है? कब पढ़ना है? अम्मा शिया है, बैठा बंदा महलिस होते जुमला खा जाए, ये नहीं हो सकता। यही कुरान सर पे रख के बेचारे शिया कहते हैं, मौलवी जी जिसको दरूद की खबर ना हो उन पर दरूद नहीं होता। हाय हाय सैयद आला मौला आपका साया सलामत रखे। जी बाबा जी, अंकल खिदर जी मैं जुमला कहने लगा हूं, आप अपने गेट को संभालिए। जितने भाई खड़े हैं, गदीर की सुन्नत है खड़ा होना और बैठना, दावत अशीर की सुन्नत है। अशीर वाले और गदीर वाले हर हलाली शिया सुन्नी भाई मिलके आपने जुमला सुना है। सहाबा ने पूछा, बाबा जी सहाबा ने पूछा, रसूल ने बतलाया कि या रसूलल्लाह कैसे पढ़े? फरमाया मेरे पीछे पीछे पढ़ो। जी सैयद पाक फरमाया पढ़ो, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आल मुहम्मद व आल मुहम्मद। आज के बाद ऐसे पढ़ना है। जी मुर्शिद पाक ठीक है, जैसे आपने कहा वैसे पढ़ेंगे। सैयद पाक ऐसे पढ़ना है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व आल मुहम्मद। आल दुते मद्दी लमकाया कर, व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आ खड़ा नंबर है, व आल मुहम्मद, ये लंबा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। मुस्तफा ने शादी बताया, सहाबा ने सीख के पूरी कायनात को बता दिया, जो इन पर दरूद पड़े वो सहाबी है, जो इनसे जंग करे वो सहाबी नहीं है। बापू जी दरूद वाले हैं। मैं बिस्मिल्लाह कर, मौला आपको सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। मीरपुर वालों, ये फजाइल जैसे आपने सुना, मर्जी आपकी। पहले मैं अंगूठी उतार लूँ ताकि गरीबों की तरह मसाइब पढ़ूँ। ये जिन पे दरूद वाजिब हो ना, उनकी बेटियों को तमाचे नहीं मारते। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। 4 से 5 मिनट, कल फिर लंबा मसाइब पढ़ूंगा। आज मैंने मुर्शिद पाक को ज़्यादा बिठा दिया, 4 से 5 मिनट। बिस्मिल्लाह बाबा जी। और मैं अकमल शाही से पूछा, मैं इरादा ये किया है कि मैं उस सैयद का मसाहिब आपको सुनाऊं जिसकी जीन छोड़ने के बाद बीबी ने कहा था हाय मेरा पर्दा। समझ गए जी? सारे समझ गए? मैं बिस्मिल्लाह, यानी बाबुल हवाइज, अलमों वाला, बहनों का मान। और मैं जैसे फजाइल पढ़ता हूँ ना, अपने भाइयों को अपने साथ मिला के पढ़ता हूँ, इसी तरह मैं मसाइब भी पढ़ता हूँ। आपको मिलाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे सारे मिल के, क्योंकि हम सारे पाक बीबी बतूल को पुरसा देने आया ना, हम में से कोई भी बेगाना नहीं है। सारे भाई मिल के मैं पढ़ूंगा, कभी आपसे कहूँगा आप पढ़ें, आप भी मुझे बताएंगे। लो पहला लफ्ज़ आपसे पूछता हूँ, मसाइब का लफ्ज़ पूछता हूँ। ये बताइए, बाबा जी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि करबला में कुल शहीद कितने हैं? मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको 72 लाख खुशियाँ दे। 72 है ना? लो जी जुमला कहना गाऊँ, अली शाह जी से लेकर आखिरी भाई तक हर बंदा हाय करे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम। 72 में सबसे बड़ा कद भी गाजी का है, सबसे छोटी कब्र भी गाजी की है। जी मैं बिस्मिल्लाह, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। जो मेरे भाई बैठे हैं करीब, मातम करके हाय हुसैन कहिए, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। सैयद मैं जुमला फिर दोहराता हूँ भाईजान। 72 में सबसे बड़ा कद भी गाजी का है और सबसे छोटी कब्र भी। बाबा अली शाह जी
बाबा सबीर शाह जी, पीर इम्तियाज शाह जी, बाबा अकमल शाह जी, मुझे आपकी पाक जद्दा की कसम है, रिवायत ये है असगर की खबर बड़ी है, गाजी की खबर छोटी है। मैं बिस्मिल्लाह करम बाबा जी, पता है रिवायत क्या कहती है, अरबी मकतब क्या कहता है, कब्रुल अब्बास से कल किताब है, गाजी की कब्र इतनी है जितनी किताब होती है। आपका हक बनता है, आप मुझसे पूछिए जाएगा मुझे, तो भाई तू सिर्फ जाकिर नहीं, तू एक शिया तालिब इल्म भी है, हमें इतना तो बता कि ऐसा हुआ क्यों था। सारों के साथ हाय करोगे। मौला की कसम लिखा है, जब अब्बास मौला जीन से गिरा है ना बाजू कटवा के, सारे हाय करनी है, कत्ताऊ बेअसियाफिहिम इरबन इरबा, ये जालिम ऊपर से ऐसे मारते रहे जैसे कसाई गोश्त बनाए तो कीमा होता है। मैं बिस्मिल्लाह। अगर आपके सामने अरबी मकतर पढ़ा जाए, या आप मर दें या हमें मार दें, खुदा की कसम अभी तो हम पर्दे डाल डाल के मसाइब पढ़ते हैं। कत्ताऊ बेअसियाफिहिम इरबन इरबा, मेरे मौला अब्बास के गोश्त ऊपर उड़ता था। अगर जुमला बर्दाश्त करें तो कहूं, मुझे 7 मुहर्रम को निकलने वाली एक यतीम सैयद की मेहंदी की कसम, कासिम के टुकड़े थोड़े थे, गाजी के टुकड़े ज्यादा थे। अरे मौला तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। मीरपुर वालों, दुश्मन भी जानता था कि ये अब्बास कोई आम सैयद नहीं, बहनों का मान भी यही है, हुसैन की जान भी यही है। मैं तरीक से मिसाल दूं आपको, बिस्मिल्लाह करा, आप ये ना समझे कि शिया जाकिर था इसलिए कह दिया, तरीक से मिसाल देता हूं। जब मेरा मौला गाजी घोड़े से गिरा है ना, एक शामी कहता है हटो पीछे हटो, मुझे कूफा जाना है। कहा क्यों? कहा मैं जाके इब्ने ज़ियाद से कहता हूं मुबारक हो, तो जंग जीत गया, हुसैन मारा गया। रियाफत भाई को पता क्या कहता है, बाकी उसके बाकी सिपाही कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, 18 जेठ तपती हुई रेत, गर्मी ने तेरी अकल पिघला दी। का क्या हुआ? कहा बेवकूफ आदमी, ये जो घोड़े से गिरा है ना, ये अब्बास है, हुसैन नहीं। और सारे हाय करा जे, वो कहता है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, गाजी गिरा समझो हुसैन मारा गया। और मैं बिस्मिल्लाह करा, शाह जी बाजी बिस्मिल्लाह, बाबा जी अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए, गाजी सदके जावा जी, बिस्मिल्लाह कर जी, बिस्मिल्लाह, मौला तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। जी जो गाजी गिरा है ना, हौसला हौसला, मौला तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। जी जो गाजी गिरा है, जी बिस्मिल्लाह करा, समझो हुसैन मारा गया। मेरे भाइयों, मेरे पास मसाइब का पहाड़ बंदा है, जिनके उस्ताद भी मसाइब का एक नाम है पाकिस्तान में। मैं बाबा जी की मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए एक लफ्ज़ कहता हूँ, और ये मैंने कभी नहीं कहा। बाबा सबीर शाह जी मौजूद हैं, जेल में मैंने इशरा पढ़ा है, उन्होंने पूरी मुझसे शहादत सुनी है गाजी अब्बास की। ये जुमला मैंने वहाँ भी नहीं कहा जो अब कह रहा हूँ। जब 4 शबान को अब्बास आया ना, कैसे बहनों का मान है, जब 4 को आया ना, तो कुरान की तरह बाबा जी पाक आलिया ने पकड़ा और अंदर गई कमरे में। ये रिवायत मैं कभी नहीं पढ़ी, आज दिल कर पाया क्योंकि सैयद बैठा है बाबा जी से दुआ लेने के लिए। और कमरे में जाके ना आलिया ने थोड़ी सी चादर हटाई, और जहां से हटाई थी वहां अब्बास को रखा, और रो के कहती है अम्मा ने कहा था तेरा असल पर्दा अब्बास है। और मैं बिस्मिल्लाह करा जी, सैयद जी, बाबा जी मौला आपकी आंखों पे रहम फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। अम्मा ने कहा था तेरा असली पर्दा अब्बास, यानी बहनों का मान था। अच्छा, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मैं आपको साथ बुलाऊंगा मसाइब में। मैंने आपसे पूछा कि करबला में शहीद कितने थे, आपने फरमाया 72 थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब एक फिक्रा और कहता हूँ, अगर आप साथ ना भी देंगे इस फिक्रे में, बाबा जी मेरा साथ दे देंगे अपना नौकर समझ के। सैयद छोटा भी हो तो बड़ा होता है। मैं जुमला कहूँ जी, ये करबला में कुल बच्चे कितने थे? सदके 84, सही कहा, 84 बच्चे थे। 44 बच्चे, बाबा जी माफ करा जी, 44 बच्चे शहीदों के कैसे मरे? माओ के हाथ बंधे हुए थे। मैं बिस्मिल्लाह, रोने की रातें हैं। सफर मुहर्रम से बड़ा मुहर्रम है। बिस्मिल्लाह, रोने की रातें हैं। हर भाई खुल के रोए, अगले साल वो रोएगा जो रहेगा। माओ के हाथ बंधे हुए थे। जब बच्चे का हाथ माँ के बाजू से थक के छूट जाता था, बाबा जी माफ करा दे, बच्चा गिरता था, पिछले ऊंट का कदम बच्चे के सीने में। यानी मुझे ये कहना चाहिए कि सफर होता रहा, शहीदों की कब्रें बनती रही। मैं बिस्मिल्लाह कर, बाबा जी कह रहे हैं वो जो मील गिनने के लिए, मापने के लिए बुत्ती लगी होती है ना, बाबा जी कहते हैं वो बुत्ती बाद में आती है, शहीदों की कब्र पहले आ जाती है। मैं बिस्मिल्लाह करा, इस तरह उजाड़िया ने शहीदा बाबा जी
مولا बाबा जी आपके मसाइब में मजीद तसीर अता फरमाए। जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा है, कब्रें बनती नहीं। अच्छा तो 44 बच्चे दुनिया से चले गए, बाकी कितने बचे? 40 बचे थे। अब आप मेरा गिरेबान पकड़। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं? अगर रोना ही है तो अपनी बहनों को साथ क्यों लाते हैं? आज तुझे बताऊं हम अपनी माओ बहनों को ला के क्यों रोते हैं? बस जुल्म ही ऐसा हुआ है, दरूद वालों पे जुल्म ही ऐसा हुआ है। आज तुझे बताऊं रोते क्यों हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम जिगर तेरा फट न जाए, मैं छुपा के जुमला कहता हूं। बाकी 40 बच्चों का क्या बना? जब कटा हुआ अलम, फटा हुआ मशकीजा, झुकी हुई कमर के साथ हुसैन खेमे वापस आया ना अब्बास की शहादत के बाद, तो बच्चों ने अलम देख के महसूस किया शायद चचा पानी ले आए। 40 बच्चे आगे बढ़े, हुसैन को जख्मी देखा, इशारे से कहा गाजी मर गया। खड़े खड़े 40 बच्चे वहीं पे मर गए, हाथों में खाली जाम थे और बच्चों की जी बिस्मिल्लाह। मरहबा या ज़हरा, पाक बीबी आके देख, आज खमसे की पहली मजलिस है और ऐसा लग रहा है मीरपुर नहीं ये करबला है। पाक बीबी इन पे राजी रहना, पाक बीबी दुआ दिए बगैर न जाना। ए पाक मुझे बिस्मिल्लाह करा। जी मैं फिर कहता हूँ मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। पाक बीबी आप सब पे राजी हो जाए। एक बार सांस लेने जी बिस्मिल्लाह करा, फिर जुमला कहता हूँ, 2 जुमले और पढ़ूंगा और आपको सलाम कहता हूँ। ये था बच्चों का मान। सुन लिया आपने मौला अब्बास का? ये बच्चों का मान था। अच्छा एक जुमला कहता हूँ मारिफत का, ताकि ज़रा आपकी सांस बहाल हो जाए। चूँकि मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं कि हमारी जद पे एक रोने वाले की कीमत ज़मीन आसमान से ज़्यादा है। इसलिए हमें आपकी ज़िंदगी अजीज़ है। ज़्यादा जोश आए बुलंद आवाज़ से हाय कीजिए, और जोश बढ़े या हुसैन कीजिए, ताकि दिल पे प्रेशर ना आए। आपकी ज़िंदगी अल्लाह महफूज फरमाए। मारिफत देखिए, पहले एक मारिफत जुमला कहता हूँ ताकि आपका सांस बहाल हो जाए। 8वें बादशाह की कब्र पे एक बंदा 6 साल दुआ मांगता रहा। बादशाह जी, ए बाबुल हवाइज, ए गरीबुल गुरबा, ए तूस के शहनशाह, मेरी ये मौला अली रज़ा बादशाह मेरी ये हाजत पूरी फरमा। 6 साल से दुआ पूरी नहीं। एक बार कब्र पे खड़ा होकर गिला करता है, बादशाह मैं तेरा अपना हूँ, दुश्मन आके जो मांगता है तू देता है, मैं तेरी जद का रोने वाला हूँ। बाबा जी वहीं पे गिरा। बाबा जी अरबी मकतब जुमले हैं, वहीं पे गिरा, बेहोशी छाई, ख्वाब में सैयद आए और तेरे 8वें बादशाह की हालत ये थी, अमामा उतरा हुआ था, आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, करबला की मट्टी दाढ़ी में थी। तो असबी शादी रो के उसे कहते हैं, अगर तू चाहता है ना कि तेरी दुआ कबूल हो जाए, करबला मेरे चचा अब्बास की कब्र पर चला जा और मौला तेरा गुस्सा हाय कबूल फरमाए। मैं जुमला कहूँ, अगला फिक्रा कहूँ। हैरान हो के कहता मैंने पाँव पकड़ लिए, पाँव पकड़ के मैंने कहा सैयद आप 12 में शामिल हैं, आप 14 में शामिल हैं, अब्बास की बड़ी अजमत है, लेकिन वो 12-14 में शामिल तो नहीं है, फिर भी आप हुज्जत खुदा होके कहते हैं कि गाजी की कब्र पे जा सारे भाई एक बार हाय करके या हुसैन रखना। और सैयद रो के कहते हैं हाँ तेरी बात ठीक है, असल वजह यह है जिंदगी में जो हमने कहा चचा ने वो किया, अब कयामत तक जो अब्बास कहेगा 14 वही करेंगे। और मैं बिस्मिल्लाह करा, मैंने आपको सांस दिलाने का जुमला कहा था ना ताकि आपका सांस बहाल हो जाए, लेकिन फिर भी आप रो पड़े हैं। अब आइए मैं आपको आखिरी जुमला सुना के ना शहादत का, और मैं अपने सैयद पाक को मिंबर दूं। जुमला सुनेंगे? मेरे मौला हुसैन ने, पहले मुझे ये बताए क्या आपने कभी जाकिर से सुना है? ऐसे जाकिर तरीके पढ़ते हैं और बड़े बड़े कीमती जुमले अता करते हैं। मैंने बाबा जी से भी सुने हैं जुमले कीमती, इकबाल शाह जी से भी सुने हैं। क्या आपको पता है कि सैयद खानदान में 4 अलमदार हैं? पता है आपको? नहीं पता? छोटे बच्चों को तो मुझसे सुन लो। 4 अलमदार हैं पाक सैयद खानदान में, शजरा तैयबा में 4, जनाब हमजा, जनाब जाफर, जनाब अली हैदर करार और तेरा मौला अब्बास। कितने हो गए? क्या आपने कभी अली शाह जी से लेकर सकलैन गल्लू तक कभी आपने किसी जाकिर से सुना कि आज मैं तुहानू अलमदार की शहादत सुनाना जेड़ा हमजा है? कभी सुना? जाफर त्यार की शहादत सुनो जो अलमदार है, हालांकि खुद मौला अली की शहादत सुनो जो अलमदार, कभी सुना? तो आप किसे अलमदार कहते हैं? बाबा जी बात कहते हैं, बाबा जी तुहाडा नौकर दस लगा वजह, बाबा जी तुहाडे तक हर भाई हाय करे, एक बार हाय जरूर कराया जाए। दसा जी तेरे छठे बादशाह से पूछा गया, मौला जब बड़े भी अलमदार थे आप सैयदों ने गाजी को अलमदार क्यों कहा? मेरा दिल करता है मैं बावे दी जुबान जो गुजराती जुबान जो जुमला खा रो के तेरा सादिक मौला फरमाता है असल गल आई उन्हां पहले त्रवां दी मौत तो बाद भी असी वास्ते रहे सा। बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला जी सदके जावा, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। हम पहले 3 की मौत के बाद भी आबाद ही रहे, गाजी की मौत के बाद ऐसे उजड़े हैं जैसे बाबा जी कह रहे थे भाई बहनों से जुदा हो गए।
माएँ बेटों से जुदा हो गई। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। अच्छा ये सुन लिया आपने, आखिरी जुमला और सलाम करता हूं। अभी तक जो भाई मातम जैसी अजीम इबादत में शामिल नहीं हुआ वो हाथ सीने के करीब करे, मैं जुमला कहने लगा हूं। मेरे पाक मुर्शिद हुसैन ने बचपन में एक शेर पाला था। बाबा लिजा शाह जी, बाबा जी इस शेर का नाम है मक्तल अरबी में अबुल हारिस। कुछ लोगों ने शिकायत की, या रसूलल्लाह हमें हुसैन के शेर से डर आता है, अब हुसैन से कहिए इसे आज़ाद कर दे। 4 साल का सैयद है, शेर के करीब आए, अबुल हारिस जी मुर्शद, फरमाया मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। शेर भी नौकर है ना मौला का, ते असी भी सारे की अपनी कैफियत समझ के ऊंची हाय कर रह जे। हाथ जोड़ के कहता है बादशाह तू जानता ना मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। बादशाह फिर भी तू मुझे कह रहे ना कि यहाँ से चला जा। बादशाह कहाँ जाऊँ? फरमाया जगह भी बताता हूँ और वादा भी करता हूँ। फरजंदे ज़हरा का वादा हुआ, तेरी मेरी एक मुलाकात जरूर होगी। सैयद पाक कहाँ जाऊँ? फरमाया एक जंगल है जिसे नैनवा कहते हैं। छोटे बच्चों यानी करबला, एक जंगल है जिसे नैनवा कहते हैं, वहां चला जा, तेरी मेरी एक दिन मुलाकात होगी। पहले सैयद के सामने पुरसा पेश करूं, फिर जुमला कहता हूं। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, इसकी मुलाकात तब हुई थी जब 9 हिस्सों में हुसैन का लाशा बिखरा हुआ था। मैं बिस्मिल्लाह कर 9 हिस्सों में ज़हरा के बेटे का लाशा बिखरा हुआ था। जी बिस्मिल्लाह। रोता हुआ शेर करीब आया, हुसैन के लाशे को काबा समझ के इसने तवाफ शुरू किया और रोता है। और जैसे हम मातम करते हैं ना अपने हाथों के साथ, ये कैसे मातम करता था? ये अपना सर मारता था पत्थरों पे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाबा जी इसका माथा फटा, ए अगले इसने पंजे जोड़े, ए हुण एदी गल ले ते हाय तुहाडी है। अगले पंजे जोड़ के कहता है मुझे एक हमले की इजाजत दे, तुझे तेरी माँ का वास्ता मैं इन हरामियों से पूछूं ज़ैनब की चादर किसने उतारी है? मैं इनसे पूछूं कुरान के गिलाफ, जी हौसला, जी हौसला, जी मौला तेरा पुरसा गुस्माए। मैं इनसे पूछूं सैयदा कुरान के गिलाफ किसने उतारे हैं? बादशाह मुझे इजाजत देता है। कटी हुई गर्दन से आवाज आई। मेरे कुछ ऐसे भाई मौजूद हैं बाबा जी यहाँ पे, मैंने देखे हैं जो कुल्ले आल सईदा मौजूद थे बाबा जी 18 मुहर्रम को। मुर्शद मैंने ये जुमला कहा था बाबा जी आपकी जद की कसम है, वहाँ हालत गैर हो गई थी। फिर मैं मसाइब छोड़ के गया नहीं, मुझे भागना पड़ा था। ऐसे लगता था जैसे कोई ना कोई मोमिन मर जाएगा। इस तरह लोगों ने, बाबा जी का इलाका है, बाबा जी पूछ सकते हैं, इस तरह लोगों ने बेहाल होकर सख्त मातम किया। मैं अदब से पढ़ूंगा, आपका जोश बढ़े तो बस बुलंद आवाज से हाय हुसैन कह दीजिए, इतना काफ़ी है। लेकिन कंट्रोल के साथ आपने जुमला सुना है। इमाम फरमाते हैं जा मेरी तरफ से इजाजत है। वो सामने तेरी मुर्शदादी खड़ी है जिसके बाल खुले हुए हैं, चादर उतरी हुई है, उसकी हाथ में एक लकड़ी की चोप है जली हुई, और आज वो गाजी बन के कह रही है अल हाफिज वल हफीज कह रही है। बाबा जी जुमला कहना है, हौसले के साथ सुनना है। जोश बढ़े तो फिर मातम हुसैन की सदा आपके सीने से आनी चाहिए। जा अगर तेरी मुर्शदादी इजाजत दे, मेरी तरफ से इजाजत है, जा जाके हमला कर। अब चूंकि इसने हुसैन से सुन लिया ना कि बादशाहजादी का सर नंगा है, अब ऊपर नहीं देख रहा, गर्दन नीचे, आहिस्ता आहिस्ता उन खैमों की तरफ बाबा जी चला। बाबा जी मैं खैमे कैसे कहूँ, आपको पता ना आग लग चुकी थी। बाबा जी उनकी तरफ चला, आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे है। जब इसने महसूस किया ना कि कुरान की सूरत बिल्कुल मेरे सामने है, बाबा जी इसने ऊपर नहीं देखा, करीब जाके ना पाक बीबी की इसने रुख फेर लिया। बाबा जी देखा ए यूं करके कहता है, मुर्शदादी मेरे सैयद कह रहे हैं अगर तेरी आकाज़ादी इजाजत दे, मेरी तरफ से हमले की इजाजत है। मुझे कसम है आपके पाकीज़ा मातम की और आंसुओं की। ये जुमला सुनते ही बीबी ने कहा तू कौन है? कहता मैं हुसैन का शेर हूँ। लफ्ज़ शेर आना था, जली हुई चोट बीबी ने जोर से जमीन पे फेंकी। अपने बाबा अली के लहजे में जलाल में आके बीबी कहती है जा अपने मौला से कह दे मैं तेरे शेर को इजाजत नहीं देती। जब मेरा शेर हाथ मलता हुआ चला गया और बार बार और मेरी जूती पे हाथ रख के कहता था एक हमले की इजाजत दे दे, और तुझे हौसला 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 या ज़हरा, मरहबा या ज़हरा। पाक बीबी आके देख, ये मीरपुर नहीं तेरे बेटे की करबल। जी हौसला, जी हौसला, जी हौसला। मौला तेरा कुर्सा, एक बार सांस लीजिए। जी जनाब सईदा आपका कुर्सा कबूल फरमाए, पाक बीबी आपकी हाथ कबूल फरमाए। फरमाया बार बार मेरे कदमों पे हाथ रख के कहता था एक हमले की इजाजत दे दे, तुझे शराबियों से चादर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिस्मिल्लाह करा लो जी। एक जुमला आप सांस लेके सुन लीजिए, इसी फिक्रे पे मैं आपको सलाम करता हूँ। क्या पढ़ते हैं जाकिर?
मैं सारा कुछ छोड़ता हूँ, सिर्फ आपसे इतना पूछता हूँ, एक बार सांस लीजिए, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। आखिरी मिनट और आपको सलाम कहता हूँ। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अलम इसी तरह होता है ना कि नीचे फरेरा होता है और ऊपर, ये मैं ठीक आख रहा? क्या आपको पता है, आपको ऐसे तारीख पढ़ने वाले ज़ाकिरों ने बताया कि ये नक्शा क्यों है? मैं सुना, जब मशकीज़ा लेके पाक सईदा सकीना आई थी ना कि चचा मेरा असगर बड़ा प्यासा है, तो अब्बास मौला ने कहा था, बीबी आप हैं मेरे मौला की तहज्जुद की कमाई, बीबी अगर आप मशकीज़ा पहनाएंगी ना तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे मौला इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी कितनी इज्जत है उनके दिल में। बीबी रो के कहते, चाचा कैसे पहनाऊं, आपका कद बड़ा है। और जने मेरे करीब बैठे हो मातम करके जुमला सुना जी, लो जी बाबा अली रज़ा शाह जी, बाबा जी मुझे आपकी पकीज़ा ज़ाकरी की कसम है, मैंने यही पढ़ा है कि अब्बास मौला मशकीज़ा पहनने के लिए सैयद ज़ादी के सामने इतना झुके कि गाजी का माथा सकीना के पाँव पे आ गया। बाबा जी मैं जुमला आप है ना, और आपने सुन लिया। इधर आप मेरी तरफ देखेंगे ना तो हमारा ज़ाकिरों का काम होता है आपके सामने पूरा एक फिल्म का सीन जो है ना तारीख का, वो आपके सामने पेश करना। हमारे पास लफ्ज़ ही है ना, अब आप जरा ले जाएं करबला की तरफ से। अब मेरी तरफ देखिए, यूं पाक बीबी ने यूं दोनों हाथ रखे और हिचकियां लेके ना, कुछ देर के बाद यतीम होने वाली सैयदादी हिचकियां लेकर रोने लगी, सारे हाय करनी है, और रोती हुई बीबी कहती है, चचा चचा क्या समझ के मेरे पाँव पे हाथ रखा है? नीचे झुके हुए वफा का किरदार कहता है, वक्त की ज़हरा। अमीर पर वाला जब कहा ना वक्त की ज़हरा, बीबी रोक कहते, फिर मैं सकीना बन के नहीं दादी बन के वादा करती हूँ क़यामत तक मेरे बाबा का अलम नीचे रहेगा, तेरा हाथ ऊपर रहेगा। ये सैयदादी का वादा हो गया, इसलिए आज अलम की शक्ल ये है, कपड़ा नीचे होता है और गाजी का हाथ ऊपर होता है। लो जी ज़ाकिरों से क्या सुनते हैं, यूं मशकीज़ा भरा। आपको पता है मेरे बादशाह के घोड़े का नाम क्या है? अशअल। ओए मीरपुर वालों, ओए तारीख सुन के रोने वालों, पढ़ा लिखा मसाहिब सुन के रोने वालों, लिखा है जब मौला अब्बास ने मशकीज़ा भरा है ना, तो जो अशअल था ना घोड़ा, वो अगले सोम उठा के ना जोर जोर से पानी में मारता है, उछल उछल के पानी, 3 दिन का प्यासा है, उछल उछल के पानी अब्बास के कपड़ों पे आता है। उलिल अमर के बेटे ने यूं देखा, माजा फालता या अशअल, अशअल ये क्या कर रहा है? सारे हाय कर रही है। रो के कहता, बादशाह अगर मश्क खैमे ना भी ना गई, तेरा लाशा तो जाएगा ना, तेरा लिबास निचोड़ के सकीना असगर को पिला देगा। मौला मौला उसका भाई बड़ा प्यासा है। और मैं बिस्मिल्लाह करा, बाबा अली रज़ा शाह जी से लेकर बाबा जी के उस्ताद इकबाल शाह तक सारे ज़ाकिर यही पढ़ते हैं ना। अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पहले दायां बाजू कलम हुआ, फिर बायां बाजू कलम हुआ, गाजी ने मशकीज़ा मुंह में लिया, सामने से जो तीर आता है अब्बास पेशानी आगे करके कहता है, आ अली असगर का सदका, आ बीबी सकीना का सदका, और एक तीर सीधा मशकीज़े में लगा, पानी बह गया। शाह जी आपके सामने डर की वजह, सैयदा ना इनके सीनों में पहाड़ है मसाइब की, ये आपके डर से कहते हैं कि अब गाजी ने कहा था घोड़ा मुंह फेर ले, मुझे सकीना के सामने जाते हुए शर्म आती है। ये पता है ऐसे क्यों पढ़ते हैं? ताकि असल हकीकत जान के आपका जिगर ना फट जाए। मुझे पाक सैयद की जद्दा की कसम है, बात शर्म की नहीं थी, असल बात ये थी, हुसैन जहां से पकड़ता जाता गाजी बिखरता जाता। अब्बास का लाशा इस काबिल नहीं था शादी कि वो खेमे में जा सके। अब जाकिर तेरे डर से कहते हैं, इधर से गाजी गिरा, उधर से बीबी सकीना करीब आई और आके कहते, बाबा मेरे चचा कहाँ है? हुसैन रो रहा है, बाबा मेरे चचा कहाँ है? शबीर का मामा खुला है, गर्दन में आ गया, बाबा मैंने पूछा मेरे चचा कहाँ है? कुरान की तरह कारिये कुरान ने सैयदजादी को बुलंद किया। ऐसा मंजर देखा मीर पर वालों, हर बंदा मातम करे। बीबी ने अपने मुंह पे मातम शुरू किया और रो के बीबी कहते, बाबा असगर मरता है तो मरे, एक बार चचा को बुला ले, बाबा मेरे चचा को बुला ले। कहा क्या देखा? कहा बाबा मेरे चचा के हाथ नहीं है, ऊपर से कोई खंजर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तलवारें मारता है, कोई पत्थर मारता है। और जाकिर तेरे डर से कहते हैं, हुसैन की कमर झुकी और अब्बास को लेने गया और हुसैन को ठोकर लगी। सामने दायां बाजू था, फिर ठोकर लगी, बायां बाजू था, फिर ठोकर लगी, अलम था, फिर ठोकर लगी, मशकीज़ा था। और मीर पर वालों, लाओ मिंबर पे कुरान खोल के मेरे सर पे रखो। हुसैन को ठोकर नहीं लगती थी, असल बात यह थी जब गाजी जीन से गिरा है, उमर साद ने कहा अब हुसैन का रहा कोई नहीं,
جیسے چاہو حسین سے سلوک کرو. کوئی دائیں سے تماچا مارتا غریب بائیں گر پڑتا,